So today we are going to talk about the phylum Annelida, characters and classification. So name of the phylum Annelida was the first coined by Lamarck for the higher segmented worm. Actually the word Annelida comes from the Latin word annulus, means little ring, and adios means form. In general, annelids are elongated, bilaterally symmetrical, and highly organized animals in which the organs have grouped in a definite system. So here you what you find different organ systems you are going to see. They are bilaterally symmetric and highly organized. They are highly organized animals in which the organ have grouped into definite system. You find here appearance of metamerism. If you see earthworm, you can make out segments. So this is true metamerism. Okay. Its internal segment is also there. Each segment is by birth. So that is all true segmentation. Previous phylum, previously Platyhelminthes and previous phylum Platyhelminthes had segmentation, but was the false segmentation. So here they are the segmented worm, and the flat they are and here segmented different from that Nematoda, where the segmentation was so, Platyhelminthes, where the organ system was not developed particularly, and what do you call segmentation was not there, and if it was there, it was not true segmentation. Here, paired appendages are there. And whenever the paired appendages are present, they are known as joint. Because joint appendage is the characteristic of the uh, arthropoda. Their coelom, nephridia, and cephali are better developed than those of the unsegmented ones. They are the first animals to have a closed vascular system. Nervous system is fundamentally similar to that of arthropoda, and embryology is not much different from that of mollusca. So this is the introduction of the phylum. Let's go in detail. So they are mostly aquatic, some terrestrial. Say for example, earthworm you find on the land, burrowing on tuberculous. Some are they have burrowing form also, and some are also living in the tube. Some commensal and parasitic. Now you know what do you mean by commensal and parasite. Body is very much elongated. You know, how do you mean by elongated body? It's very elongated, bilaterally symmetrical. So you cut from it can be divided into two equal halves. Triploplastic, that's prism layer, and truly coelomate. That is truly coelomate animals. So they are first major phylum, which is major phylum that is the truly coelomated. They are metamerically segmented to similar metamer. Epidermis of a single layer columnar epithelial cell and covered externally by thin cuticles, and that is not made of the chitin. So if you see the earthworm, if you have taken earthworm, you can see very slippery. Why? Because the cuticle layer is there. Body wall has got a dermomuscular system. Dermomuscular bottom piece, the muscular is there on the body wall. Outer muscle fiber is circular, and the inner muscle fiber is the innernuclear. If you take the earthworm LS or TS of the body wall, you can see this layer. Locomotory organs are the organs are segmented, repeated chitinous bristles called setae. So on this is the main base of the classification, further classification of the phylum Annelida. They have got the bristles of setae in the ambia in the skin. Many be borne by the lateral fleshy appendage is parapodia. So in earthworm you are not going to see parapodia, but in many forms you are going to see the parapodia. So their locomotion is by the setae. If they have too much setae on the body wall, they are called the polychaeta, and if they are less, then it's called if they are lesser, then it's called oligochaeta. Okay. So parapodia. Parapodia is slightly there. Okay. So parapodia is like a suppose this is the suppose this is a segment. This is another segment. Say for example, this is another segment. So parapodia would be like, so this would be like the of them one around. It would be like a parapodia. So each segment has got its own parapodia. So these are in some form you find the locomotory organ in form of parapodia. Okay. So they have parapodia also. Okay. So this way they have got the parapodia. Then coelom through schizocylus coelom. So what do we mean by schizocylus coelom? You know, schizocylus coelom is the coelom that is by splitting of mesoderm. Okay.
Mostly well developed except in leeches, usually divided into compartment by transverse septa, coelomic fluid with the cells or corpus cells. Digestive system straight and digestion, complete digestive system, that you know what you mean by complete digestive system. Mouth to anus. Digestion entirely extracellular. Blood vascular system here is closed. The first time you have closed blood vascular system, respiratory pigments are either hemoglobin. So respiratory pigments, like human beings have hemoglobin, but here also hemoglobin, but they are dissolved in plasma. Unlike a human, where human have RBC in the hemoglobin in the RBC. Erythropoietin is in some form is another sort of the pigment that is called erythropoietin. Erythropoietin is also there, and that is also in some form. You find that respiration by the moist skin. Skin is very moist, so through that skin respiration can occur. Or in some form, say for example, um, in some forms you also find the gills that we will discuss later on, and parapodia and the head. So parapodia, the surface of the parapodia also sometimes helpful in the respiration. Even head is also there for the respiration. Excretory system is consisting of the metamerically disposed coil tube called the nephridia. You must have studied in detail in this topic of the earthworm. Per segment, you have got this nephridia. There are 2 to 3 kind of nephridia, segmental nephridia, and other kind of nephridia also there. Pharyngeal nephridia, say for example. So here, segmental nephridia is also there. It's a excretory organ. Nervous system, you know, in earthworm, nervous system is based of the pair of cerebral ganglia blend. You know what, how does they, let's say for example, if there is a cerebral ganglia, these are the cerebral ganglia, and then you have then there is another ganglia that you call subesopharyngeal ganglia, and per segment you have drawn the ganglia. So say for example, this is the subesophageal ganglia, ऊपर वाला जो है वो cerebral ganglia, इनके बीच का ये है cerebroesophageal connective, and then per segment then there is a dorsal, then there is a nerve core, ventral nerve core, and on nerve core you find per segment. Say for example, per segment is this segment. Per segment you are going to see the what you call ganglion. So each segment bears the ganglia. It's a double ventral nerve core bearing ganglia, and lateral nerve is also there from each side. So ये जो segment का ganglia है, ganglion है, उसमें से lateral nerves भी arise होते हैं. So each segment also has got the lateral nephridia. Sensory organs include like tactile organs, taste buds, phytocytes, photoreceptor cells, and sometimes eyes with lenses in some. Hermaphrodite animal हैं और sexes separate, दोनों टाइप के होते हैं. Cleavage spiral, what do you mean by cleavage spiral? That you already know. Determinate cleavage, that you also have been discussed earlier. Larva when present is a trochophore larva. Regeneration is common. earthworm का काटोगे तो दूसरा हिस्सा बना लेता है. About 8,700 species of Annelida are divided into 4 main classes. So primary on the basis of the presence or absence of the parapodia. अब इनमें parapodia है कि नहीं, उसके आधार पे absence of the parapodia, setae and metamorphism और अदर मॉर्फोलॉजी है. तो मेनली इसका जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे जो मेजर क्लास है वो सीटे है. तो यहाँ पे इसका जो मेन है 3 या 4 क्लास है, 4 क्लास है यहाँ पे. तो सबको हम 1 by 1 लेते हैं. क्लास 1 इज पॉलीकीटा. Poly means polychaeta. Poly have many, and chaetae means hair, bristle. So they are polychaeta mainly marine, some in the fresh water. They are polychaeta chiefly marine, some in fresh water. Segmented internal, external, head distinct with eyes, scales, and tentacles. Chaetae numerous on lateral parapodia, and chaetae are numerous on their body. Chaetae are numerous, and they have on lateral parapodia. जो chaetae का जो मेन लोकेशन होता है यहाँ पे parapodia पे है. क्लाइटेलम जो अर्थों में आपको देखने मिलता है, यहाँ पे नहीं दिखने मिलता है. दैट इज मीन्स यहाँ पे क्लाइटेलम इज एब्सेंट. Cinereis is the example of this polychaeta. Sex is separate, bone are temporary and in many segments. Sex is separate, मेल और फीमेल अलग है. ट्रोकोफोर लार्वा होता है. तो इनका मेन जो है इंटरनल एक्सटर्नल. तो हेड जो होता है, आपको अर्थफॉर्म में हेड इतना डिस्टिंक्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर आप नेरिस का देखोगे तो आपको बहुत अच्छा आइज दिखेगा, हेड दिखेगा,
पाइल्स दिखेगा, टेंटिकल्स दिखेगा, ये सारे फीचर आपको पॉलीकीट में देखने मिलते हैं जो आपको उसके बाद वाले क्लास में देखने नहीं मिलते। क्लाइटेलम जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये आधार पे, और कीटे बहुत न्यूमरस है इसीलिए इसको बोलता है पॉलीकीटा। मोस्टली वे मराइन होते हैं, फ्यू स्पीसीज आर फ्रेश वाटर। अब एक बात करें क्लास ओलिगोकीटा की, तो ओलिगोस मीन्स फ्यू एंड कीटे मीन्स है। So mostly terrestrial, some are in the fresh water. Segmentation external and internal. इनका segmentation कैसा है? External and internal. Hair indistinct without sensory organ. इसमें हेयर कैसा है? जैसे आपने अर्थों में देखा होगा, आप बता नहीं सकते इसमें आइज दिख रहा है कि ये दिख रहा है ना? तो हेयर जितना डिस्टिंक्ट नहीं होता एंड विदाउट एनी सेंसरी ऑर्गन। इनकी बॉडी में कीटे बहुत कम होते हैं और कहाँ पे होते? पेड़ापुरे तो है ही नहीं, पेड़ापुरे तो होता ही नहीं है, तो पेड़ापुरे में कीटे नहीं होंगे क्योंकि पेड़ापुरे ही नहीं है। तो दिस कीटे आर एम्बेडेड ऑन द स्किन। अगर आप इसको टीएस में प्रैक्टिकली पहले उसका स्किन को काटें और उसके ऊपर की लेयर दूर करें और उसको जब आप डिटेक्टिंग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको पैरापोडिया दिखेंगे, जिसमें आपको हेड, नोड्यूल, बेस ऐसे 3 पार्ट होते हैं, जैसे आपने बॉडी वॉल में आपने देखा भी होगा। तो वो आपको कीटे यहाँ पे इस तरह के ब्रीसेस, ऐसे कांटे हो गए ऐसे ब्रीसेस आपको दिखेंगे। ग्लैंडुलर क्लाइटेलम प्रेजेंट फॉर ककून फॉर्मेशन, ये रिप्रोडक्शन में काम में आता है। आपने एलन रेडियो की रिप्रोडक्शन देखी होगी, उसमें आपने ये देखा होगा कि वहाँ पे ग्लैंडुलर क्लाइटेलम जो होता है वो सिक्रेट करता है, वो ककून फॉर्मेट करता है। दे आर हर्मेफ्रोडाइट है। टेस्टिस जो होता है, एक ही एनिमल में टेस्टिस और दोनों ऑर्गन है मेल और फीमेल के, इसलिए हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं इसको। टेस्टिस एंटीरियर टू ओवरी। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको बोलते हैं कि हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल अर्थवर्म। तो पहले तो आपको यही बोलना है कि सर क्वेश्चन ही गलत है, मेल और फीमेल जैसा होता ही नहीं, एक वो हर्मेफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल in cocoon, and cocoon development, fertilization external, and that is occurring in the cocoon, development direct and low larval stage. अब क्लास 3 की बात करें तो तो हीरोडीना की बात करें तो जो हीरोडू है वो उसका लैटिन वर्ड का नाम है लीफ। आपने लीफ देखा होगा, जैसे कि तालाब में कोई ये बफेलो वगैरह पे वो चिपका हुआ होता है, ब्लड सकिंग है। कई बार बॉयज वगैरह की ट्रीटमेंट में पहले के जमाने उसको यूज करते थे, आज की डेट में कुछ डॉक्टर्स अलग अलग मेथोडोलॉजी में उसको बॉयज में जो गंदा लोही, आपका गंदा जो खून जमा हुआ है या आपका जो पस है उसको निकालने के लिए वहाँ पे चिपका देते हैं। तो इसका मेडिकली यूज होता है। आप यूट्यूब पे देखिए, आपको कई वीडियो देखेंगे हीरोडीना से ट्रीटमेंट लेते हुए। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? आपको तालाब में मिलते हैं मेनली। तो ये फ्रेश वाटर है, मराइन है और टेरास्केल भी हो सकते हैं। जनरली दे आर एक्टोपैरासाइटिक, ब्लड सकिंग एंड कार्निवोरस। तो इनका जो हैबिट है, जो है खाने का हैबिट है कि वो कार्निवोरस है, ब्लड सकिंग है। बॉडी विद अ फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट, उनकी बॉडी के अगर आप देखो तो टोटल सेगमेंट 33 है। हाँ, सब सेगमेंट भी होते हैं। इस सेगमेंट सब डिवाइड एक्सटर्नल इनटू एन्युअली, तो उसके ऊपर एक रिंग्स होते हैं, उसमें एन्युअली कहते हैं, उसमें डिवाइड है। सेगमेंट इज एक्सटर्नल विदाउट इंटरनल सेप्टा। जो सेगमेंटेशन वो क्या है? एक्सटर्नल है और अंदर कोई सेप्टा नहीं है। पैरापोडिया और सीटे एब्सेंट है। बोथ एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी विद द सर्कस, बॉडी का एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड दोनों पे सर्कस है। जो सीलोम है बहुत ही रिड्यूस है ड्यू टू इट्स फिलिंग बाय द बॉस्ट्रियोइडल टिश्यू एंड फ्रॉम द हीमोसिलोमिक साइनसिस। तो इसका ये एक्चुअली क्या है ये हम बताते हैं। तो जो आपका जैसे हमने कहा कि बॉट्रिडियल टिश्यू इसमें होता है, तो बॉट्रिडियल टिश्यू जो होता है वो क्या है? एक्चुअली बॉट्रिडियल टिश्यू एक बंच ऑफ सेल्स है जो एक्चुअली उसमें पिगमेंट्स होते हैं, और वो उसका मेन जो फंक्शन है वो उसका है एक्सक्रीशन में काम में आता है, इसमें होता है मेनली। तो उससे भरा होता है ये पूरा बॉट्रिडियल टिश्यू, सीलोम भरा होता है, इसलिए वो रिड्यूस हो जाता है सीलोम। और यहाँ पे सीलोम है वो होमोसिलिनिक साइनसिस बनाता है। साइनस मतलब कैविटी, मतलब कि वहाँ पे ब्लड फील्ड साइनसिस, मतलब यहाँ पे क्या हो गया फिर से, यहाँ पे ओपन सर्फेस सिस्टम हम कह सकते हैं, हीमोफिलिक साइनसिस है इसलिए। तो यहाँ पे हर्मेफ्रोडाइटिक है विथ वन मेल एंड वन फीमेल। इसके आगे वाले में आपने देखा था कि बाइसेक्सुअल था, यहाँ फिर से यूनिसेक्सुअल है। सॉरी 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 मैं गलती कर रहा हूँ। हर्मेफ्रोडाइटिक मतलब कि यहाँ पे भी बाइसेक्सुअली और वहाँ पे वन मेल और वन फीमेल गोनोपोल है। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल है, यहाँ पे भी डेवलपमेंट ककून नहीं होता है और डायरेक्ट विदाउट लार्वा स्टेज। तो यहाँ पे कोई लार्वा स्टेज आपको देखने को नहीं मिलती। फिर ये है आर्क मतलब फर्स्ट, एनेलिडा ग्रीक वर्ड है, आर्क मतलब फर्स्ट, आर्क एनेलिडा है। तो अबाउट 1 डज़न जनरल ऑफ स्मॉल मराइन वर्म्स ऑफ अननोन एफिनिटी, उनका किसके साथ झुकाव है, एफिनिटी वो पता लगाना मुश्किल है। बहुत ही वियर्ड टाइप के हैं ये एनिमल। इनका सेगमेंटेशन जो होता है वो इंटरनली होता है, बाहर से इतना दिखता नहीं है या होता ही नहीं है। वहाँ पे कोई नो पोलापीडिया भी नहीं है और सीटे भी नहीं है। तो
सेक्सुअल जो होते हैं सभी यूजुअली सेपरेट हैं। यूजुअली उनका जो लार्वा होता है वो ट्रोपोफोर लार्वा है। तो इनकी जो मेन एग्जांपल है वो है पॉलीग्लोकॉर्डियस, इसका आप इंटरनेट पे देख सकते हो। प्रोटोडिलस, तो इनकी इमेज आपको देखनी चाहिए तो आपको समझ में आएगा इनके बारे में। अब हम थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाए। जैसे कि ये जो पूरा जो स्लाइड है वो हमने विकिपीडिया से लिया है। तो ये आपका एनिग्मा है, ये एफ्रोडाइट है, ये सी माउस है, ये कोई ग्रीक गॉडेस लव होता है, उसकी लव की देवी है, उसके ऊपर इसका नाम पड़ा है एफ्रोडिटा। अगर आप देखें गूगल पे तो कोई ग्रीक ग्रीक की कोई देवी है, उसके ऊपर से ये नाम दिया गया है। तो ये मराइन पॉलीकिट वर्म है, इसमें मेडिटेरियन सी और ईस्टर्न सी में और मतलब समुद्र में देखा जाता है। यू कैन से द बॉडी ऑफ द सी माउस इज कवर्ड विद अ डेंस मैट ऑफ पैरापोडिया और कीटे है, लाइक जैसे आप देख सकते हैं। एडल्ट का जो साइज है वहाँ की मेजरमेंट दी है 7.5 टू 15 सेंटीमीटर का हो सकता है ये। द सी माउस हैज टू पेयर ऑफ फिलर लाइक एपेंडेजेस, तो ये आपको देख सकते हैं तो लोकोमोटिव रेफरेंस करता है। क्लोज टू देयर माउथ दे डू नॉट हैव आईज, लोकोमोटिव कैरिड आउट सेवरल स्मॉल ब्रिस्टल पैरल लाइक एपेंडेजेस, जिससे लोकोमोट करता है। ये भी हर्माफ्रोडाइट है। द एग ऑफ द इंडिया फोर्टाइल बाय द स्पर्म ऑफ अनदर, तो ये तो समझ में आ ही सकता है क्या कह रहे हैं। फिर ये जो आप देख रहे हैं वो है एम्फीट्राइट। एम्फीट्राइट में आप देख सकते हैं टेंटिकल्स हैं, गिल्स हैं, हेड है, ट्रंक है, ये अलग अलग रीजन है। तो यहाँ पे ये देखिए ये पूरा ट्रंक रीजन है, तो ये एम्फीट्राइट है। ये स्ट्रक्चर है, हमने यही .com पे से लिया था, स्टडी blue.com पे से। तो एम्फीट्राइट जो वर्म है वो सिर्फ पॉलीपीट है वो भी। तो पॉलीपीटा में है, उसमें इस सेगमेंट में है बीटल बीट ऑफ ब्रिसल्स, तो वो उसके पैरापोडिया है उसमें। Some we have freely either swimming or crawling, burrowing, and these are known as errant, है ना। इरेंट की आप जो उनका सब क्लास आता है उसमें आते हैं। तो ये जो इसका दूसरा नाम है ऑर्नेट वर्म, कैन ग्रो अप टू 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर इसमें जैसे कि यहाँ पे गिल्स बताएं, जैसे हमने आगे जनरल कैरेक्टर में देखा था कि रेस्टोरेंट कहना था भाई गिल्स, तो यहाँ पे यू कैन सी गिल्स आर ऑल्सो देयर एंड यू कैन ऑल्सो सी टेंटिकल्स लेबल ऑल्सो देयर, तो टेंटिकल्स आर ऑल्सो देयर। ये हमने देख लिया इसके बारे में। अब नेरिस, नेरिस का स्पेसिमेन है, ये बहुत सिंपल सा ब्राउन कलर का नेरिस भी होता है, यहाँ पे कलरफुल आपको बताया है। नेरिस जीनस और पॉलीकिट वर्म, और इसका जो जैमेली है उसकी हम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मराइन वर्म है, तो ये जो नेरिस है वो भी पॉलीकिट में आता है, उसमें भी लोकोमोशन की, यार देखो साइड में कैसे पैरापोडिया है, पैरापोडिया के ऊपर ब्रिसल्स हैं। दे आर cylindrical in shape, found not only in the sandy area, and they are adapted to burrow also. They are uh, they are often clinging to these यहाँ पे सी ग्रास और अदर ग्रास और रॉक एंड समटाइम गैदर इन द लार्ज ग्रुप। अगर आप सिलेक्शन टूर पे आप तो बंद हो गए होंगे तो आपने समुद्र किनारे भी इनको देखा होगा। या डेंजर टू टच गिविंग वेरी पेनफुल लॉन्ग लास्टिंग बर्न्स, आपको ये छू लिया तो आपको बंद कर सकता है, तो ये थोड़ा रिस्की है नेल्स को छूना। बॉडी जो है आप देख सकते हैं स्लेंडर है, डॉर्सोनेट फ्लैटन है, रीचिंग द लेंथ ऑफ टू 5 to 30 सेंटीमीटर है। हेड है जो उसके देखिए कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स रफली ट्रायंगुलर एंटीलोब एंड द प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम जैसे आपने अर्थों में देखा होगा, प्रोस्टोमियम आगे का हिस्से को प्रोस्टोमियम कहते हैं, तो यहाँ पे भी है। ये आपने अर्थों में देखा होगा, अर्थों के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। काइटिलम होता है एंड बहुत ये रिंग जैसा होता है, ये हमें जमीन हमारी अच्छी करने का, किसानों के लिए इसको किसानों के फैन कहा जाता है, जमीन अच्छी करके देता है। आपने इसका पूरा सिस्टम पढ़ा है, इसलिए मुझे उसमें ज़्यादा डिटेल में देने की जरूरत नहीं है। जो लीच है ये ब्लड सकिंग क्रिएचर है, ये इसके 33 सेगमेंट होते हैं, और आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसवर्स ये जो है सेगमेंट वो एक्चुअली एन्युलस हैं। टोटल सेगमेंट 33 है, उसके सब सेगमेंट में एन्युलस जो है जो फर्स्ट सेगमेंट में होता है, ये ब्लड सकिंग है। इसके दो एंटी और पुटी एंड से सर्कस होते हैं, ये एक्टोपैरासाइट है। तो ये लीच का डायग्राम आपने देख लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसका आप आपके आर एल कोटपाल की बुक में आपको और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप उसमें पढ़ सकते हो। तो ये हमारा जनरल कैरेक्टर हुआ, जो हमने इससे हमारा टॉप है क्लास तक है, इसलिए कि हम ऑर्डर तक की डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन में अगर एग्जाम में पूछे क्लासीफाई लीच अप टू क्लास गिविंग रीजन, तो आपको डोमी से स्टार्ट करना चाहिए और सब कैटेगरी के रीजन डिटेल में देने चाहिए, और अल्टीमेटली लीच के बारे में भी थोड़े बहुत राइट अप लिखना चाहिए। So I think I hope you have understood the topic of this entire classification. So we have started with this lecture with the general character of the Annelida. हमने उसमें देख लिए उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स, तो उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसके जो मेजर 3 क्लासेस है वो हमने देखा। फोर्थ क्लास आर कैनेडा के बारे में देखा, और 3 से 4 हमने स्पेसिफिक भी देख लिए। आप यही तरीके से आप भी थोड़े इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हो, अच्छे से डायग्राम विकीपीडिया पे से ले सकते हो। मेनली मेरा जो बाकी है 3 से 4 डायग्राम का जो राइटअप है वो विकीपीडिया से ही है, फिगर भी मोस्टली विकीपीडिया से ही है, एक आध जगह से अलग जैसा उसका रेफरेंस दिया है। और जो कंटेंट है, ये कंटेंट के पिक है वो मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ आर एल कोटपाल, इनवर्टिब्रेट मॉडर्न इनवर्टिब्रेट टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी जो है
आर कोटपाल का उसमें से लिया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच। So see you in my next module.